Hi, good afternoon everybody. This is Vasundhara. Welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. Let's discuss the shift 2 of day 3 of the IBPS PO prelim exam. And I'm sure कि अच्छा हुआ होगा एग्जाम. Surprisingly reasoning बहुत easy आई है इस shift में compared to mathematics and English, which is a breather, which is a big relief क्योंकि reasoning कल शाम से बहुत ज़्यादा tough वाला scenario start हो गया था. All right, let's get straight to the discussion of the paper. RCs के आपके 7 to 8 questions थे and this was based on the research on pandemics kind of thing. All right, ये इसका topic था and of course आपका वही जो normal questions इसमें synonyms वाले, antonyms वाले, fillers थे and ये थोड़ा सा critical thinking based था. All right, so this was more on the critical thinking lines. ये बहुत straight paragraph नहीं था जो inferential kind of questions ज़्यादा पूछे गए इसमें. And apart from that you had 2 to 3 questions of word swapping. ये easy ही बोले हैं बच्चों ने कि easy थे questions. And then there was sentence improvement was there. All right, sentence improvement again like the shift 1 today morning. इसके sentence improvement के भी आपके 4 to 5 questions थे. And these also have been called easy. ये भी easy category में बच्चों ने डाले हैं. And apart from this you had para jumbles. All right, so which is sentence rearrangement I think. Sentence rearrangement आपका para jumble जो आया है ये था 5 to 6 questions and this paragraph was based on anxiety और stress से related था ये topic. All right, very important topic these days, mental health, because it's very important and you also must maintain your mental health. No matter if there is an exam or not, अगर आप mentally stable रहोगे तो आप किसी भी exam को ace कर सकते हो. All right, and then there were error detection, error correction. All right, error correction was the topic that happened and इसके आपके आए हैं approximately 5 questions were there and there was no closed test. तो ये बिल्कुल भी नहीं था इस shift में, second shift में आपकी. And I think we are done. All right, another one was phrases. फ्रेज या ईडियम्स ये इस बार देखने को नया मिल रहा है कि ईडियम्स काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे हैं. सो फ्रेज रिप्लेसमेंट और ईडियम्स के आपके 4 to 5 क्वेश्चंस अगेन. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द सेक्शंस. सो येस, 10, 10 and 10 इज डन. मोस्टली दिस वाज द 30 क्वेश्चंस का ब्रेकअप ऑफ द इंग्लिश और द वर्बल सेक्शन ऑफ शिफ्ट 2 of day 3, that is 11th October, that is today. And I'm sure कि आप लोगों ने अच्छा किया होगा because इसको easy to moderate बोला है बच्चों ने. काफ़ी ज़्यादा difficult तो नहीं था, attemptable था. So if you have done 20 plus in this section, you're good to go to the mains if the other section qualify. And considering you were accurate enough, तो एक्यूरेसी आपकी ऑब्वियसली 90% के आसपास होगी तभी आप सोच सकते हैं पेपर क्वालिफाई करने का. अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस. अगर आप 100% अटेम्प्ट करके आओ और एक्यूरेट नहीं है आपका जो भी आंसर्स हैं देन इट मेक्स नो सेंस एक्चुअली. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द मैथ सेक्शन. इसको भी मॉडरेट बोला है बच्चों ने, थोड़ा कैलकुलेटिव एंड लेंदी की तरफ आया है इसका रिव्यू. दैट दिस वॉज अ लिटिल कैलकुलेटिव, हाई ऑन कैलकुलेशंस and lengthy. So these are the words that the students have used. I am sure you think differently ताकि आपके लिए easy हो ये part. All right, and the first DI that was there was a double bar. All right, double bar graph था ये and इसमें आपके of course 5 questions थे and the other one was a tabular one. Tabular DI तो favorite ही हो गया मुझे लगता है. इसके भी 5 questions थे. Then there was a caselet. केसलेट था आपका स्मूदीज पे कुछ बेस्ड था. ये काफ़ी अच्छा यमी करने की कोशिश कर रहे हैं मैथमेटिक्स एग्जाम को स्पेसिफिकली. इसमें अगेन देयर वर 5 क्वेश्चंस. सो ये आपका 3 DI वाला पोर्शन हो गया, 2 DI प्लस 1 केसलेट काइंड ऑफ DI. एंड देन यू हैड 5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, 5 क्वेश्चंस एंड वेरी इजी दे हैव बीन कॉल्ड. ठीक है, वेरी इजी इज द वर्ड द स्टूडेंट्स हैव यूज्ड. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ये ओवरऑल रिव्यू सेक्शन का है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेसिफिकली इजी बोला है बच्चों ने. दैट मीन्स वन थिंग कि आपको जो टॉपिक इजी लगता है आप कोशिश करो हमेशा उससे बिगिन करने की. DI जैसी चीज़ें और RC जैसी चीज़ें डोंट कीप देम फॉर द एंड, बिकॉज एंड में आप अगर पूरा चीज़ को पढ़ने लगते हो देन यू गेट स्टक एट सम पॉइंट एंड देन इट इज़ डिफिकल्ट टू रिकवर. और आप लास्ट ऑफ द पेपर में हो तो देर इज़ नो गोइंग बैक ऑल्सो, नो टाइम टू मूव फॉरवर्ड.
एंड बिगिन विथ समथिंग वेरी इजी, डू दीज लॉन्गिश थिंग्स जो होती हैं, डू देम इन द मिडल, ठीक है, लास्ट के लिए और बिगिनिंग के लिए मत रखो। बिगिनिंग में क्योंकि अटक गए देन यू विल फील बैड कि मेरा बाकी का पेपर रह गया। सो अटेम्प्ट दोज थिंग्स इन द फर्स्ट गो जो आपको बिल्कुल आती हैं या जो देखते ही आपको पता है हाँ ये मुझे बिल्कुल अच्छे से आता है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, गो फॉर दोज टॉपिक्स, ऑल राइट। एंड देन यू हैड, इसमें था आपका मिसिंग नंबर था, ऑल राइट, मिसिंग नंबर सीरीज वॉज देयर, सो नो अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन इन शिफ्ट 2। ऑफकोर्स अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस तो थे ही, मिसिंग नंबर के 5 क्वेश्चंस थे आपके जो जैसे पता ही है, एंड इसमें 3 बहुत इजी बोला है बच्चों ने एंड 2 वर मॉडरेट, सो अ लिटिल डिफिकल्ट टू थिंक ऑफ, ये वाले जो 2 थे, बाकी 3 काफ़ी इजी बताया है बच्चों ने। उसके अलावा अरिथमेटिक में आपके जो नॉर्मल टॉपिक्स, मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन रेक्टेंगल, ऑल राइट, ये रेक्टेंगल बेस्ड था। एंड देन यू हैड टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चंस आए हैं, ऑल राइट। देन देर वॉज प्रॉफिट एंड लॉस, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस का भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है, ये भी आपका मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट परसेंट पे बेस्ड था क्वेश्चन। एंड द अदर वन वॉज, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कहा है बच्चों ने, तो यू कुड हैव लेफ्ट दिस ऑल्सो, इफ़ यू आर नॉट ग्रेट विद वन ऑफ द टॉपिक्स यू कैन लेट गो ऑफ देम इन द पेपर। पेपर में क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट नहीं बना लेनी कि मैंने शुरू कर दिया तो ख़त्म ही करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हो पा रहा है या बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसके बदले में आप उतनी देर में 3 या 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, जस्ट लेट इट गो, डोंट क्रिएट अटैचमेंट्स इन द पेपर विद क्वेश्चंस, ओके। एंड देन देयर वाज समथिंग फ्रॉम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से आपका था, ऑल राइट, एक क्वेश्चन इसका था आया हुआ। एंड दिस इज मोर और लेस द मिसलेनियस पोर्शन, ऑफ कोर्स रेशो प्रोपोर्शन से शायद कुछ होगा और, बट जितना अभी बच्चों को ध्यान था दैट वाज व्हाट वी फाउंड आउट। एंड दिस इज इट फॉर द 35 क्वेश्चंस ऑफ, आई एम श्योर 35 याद, 15 and then 25 and 35 is done. Yes, so quant section is covered. Let's look at the reasoning section. ये तो easy ही बोल दिया है बच्चों ने, बिल्कुल easy बोल दिया compared to, mind you easy is not easy, it's relative again, compared to mathematics and English इसको easy बोला है। and I'm thinking कि लोगों ने कल के reviews जो shift 4 के देखे होंगे उसके बाद reasoning से काफ़ी जनता डर गई होगी, तो I'm sure उसके comparison में easy बोल रहे हैं। बाकी तो कंप्लीटली इजी पेपर तो उसी के लिए है जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, अदरवाइज इजी कुछ नहीं होता, ठीक है। जो कर लेता है उसके लिए इजी है, जो नहीं कर पाता उसके लिए डिफिकल्टी है, ऑल राइट। सो ऑर्डर एंड रैंकिंग की आपकी एक पजल आई है, ऑल राइट, इसके देयर वर 5 क्वेश्चंस वर देयर एंड देन देयर वाज अ लीनियर, ओके, दिस इज गोइंग टू बी सीटिंग अरेंजमेंट, ये लीनियर है आपका, अनसर्टन वाला है, एंड दिस इज यूनी डायरेक्शनल, फाइन, एक ही डायरेक्शन में सब लोग फेस करके बैठे हैं बट अनसर्टन नंबर ऑफ पीपल है, लीनियर अरेंजमेंट है। सो इसके आपके 5 क्वेश्चंस थे। इसके अलावा यू हैड अ फ्लोर बेस्ड पजल, ऑल राइट, फ्लोर बेस्ड की अगेन यू हैड 5 क्वेश्चंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सर्कुलर एक सीटिंग अरेंजमेंट जो बच्चों ने जैसे बताया है, ऑल राइट, इसमें अगेन यू हैड 5 क्वेश्चंस, सो 8 पीपल वर देयर, 4 फेसिंग इनवर्ड्स एंड 4 आउटवर्ड्स, ऐसा कुछ है। प्लीज करेक्ट मी इफ देर इज एनी एरर इन द क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड और एनी इंफॉर्मेशन दैट इज इनकरेक्ट एट आवर एंड, प्लीज फील फ्री टू करेक्ट अस इन द कॉमेंट्स, ऑल राइट। एंड देन देयर वाज इनइक्वालिटी के आपके थे 5 क्वेश्चंस आपके इनइक्वालिटीज के थे। सिलॉग्स इस पेपर में नहीं आया है, सिलॉग्स इस शिफ्ट में नहीं आया बिल्कुल भी। इनइक्वालिटीज के आपके 5 क्वेश्चंस थे, ये ज्यादातर मिसिंग रिलेशन टाइप्स था, ठीक है, मिसिंग रिलेशन या फिलअप्स टाइप का था जो आपकी इनइक्वालिटीज आई हैं। देयर वाज नो कोडिंग डिकोडिंग ऑल्सो इन दिस पेपर, आई बिलीव कोडिंग डिकोडिंग भी शायद नहीं थी, एक आध क्वेश्चन में भी हो बिकॉज वो टोटल नंबर को पूरा करने के लिए प्रॉबेबली, बट मोस्टली नॉट। एंड ब्लड रिलेशंस के आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं, फिर से सिर्फ शिफ्ट 1 में उन्होंने ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शंस को छोड़ा है, अगेन डायरेक्शंस ऑल्सो 3 to 4 क्वेश्चंस, ये तो फेवरेट उनका बना ही हुआ है, सिर्फ शिफ्ट 1 में दिस वाज मिसिंग। सो दोज पीपल हु वर डिपेंडिंग ऑन 5-6 मार्क्स जो ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शंस के डिपेंड कर रहे थे, शिफ्ट 1 में उनके साथ थोड़ा सा धोखा हुआ है, बट अदरवाइज दे आर बैक टू नॉर्मल। एंड देन मिसलेनियस में आपका जो था फॉरवर्ड बैकवर्ड जो था, आई थिंक मिसलेनियस में आपके 2 to 3 क्वेश्चंस हैं बचे हुए, सो दिस इज 20, 25 एंड देन
या मोर और लेस डन. तो आई थिंक ब्लड रिलेशंस के 2 से 3 होंगे और ऐसा कुछ है, तो टोटल दिस विल कम टू 10. सो मिसलेनियस हो सकता है आपके 3 to 4 हों, दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. सो वन क्वेश्चन ऑफ वर्ड फॉर्मेशन वॉज देयर, जो मीनिंगफुल वर्ड होता है ना, उसका मिसलेनियस में आया था अभी. एंड एक जो था आपका वर्ड दिया हुआ था, उसमें आपको ढूंढना था जो पेयरिंग वाला होता है, पेयर्स वाला होता है इन द सीरीज काइंड ऑफ थिंग, कि इन दोनों अल्फाबेट्स के बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज जितने अल्फाबेट्स हैं कि नहीं. सो आई बिलीव द वर्ड वॉज रिडक्शन, एज वी हैव बीन टोल्ड दैट द वर्ड वॉज रिडक्शन, जिसमें पेयर्स ढूंढने थे. तो इसमें आर के बाद एस टी यू, सो दिस इज वन, एंड देन डी ई, तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, दिस इज सेकेंड वन. And then very clearly I think the other one that you can see is NO. So as of now I can spot 3. Please let me know if I have missed any. I tried finding C और E में तो कुछ भी नहीं है, U और T भी दूर हो चुके हैं, R S T U तो ऑलरेडी हो गया, तो R और T का भी कोई कनेक्शन बन नहीं रहा. एंड दिस इज C and E, ऑफ कोर्स C और D, C और E दूर है तो नहीं बन रहा. एंड देन E D और I भी दूर दूर तक नहीं मिल पा रहे हैं. So 3 is what I found. Let me know if there is any incorrection at our end, and that's it. All right, that's it in the reasoning section. All right, so fairly easy to moderate paper, not a difficult one, and yeah, that's that. And again, cutoffs are approximately going to be 58 to 62 is the range that we are hoping this year. 60 plus minus 2, जो मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ, यही रेंज होने वाली है कट ऑफ्स की, मोर और लेस. एंड इन दिस पेपर इफ यू हैव अटेम्प्टेड 55 प्लस, देन यू आर इन द डाइसी जोन. ये डाइसी जोन आ गया आपका. 60 प्लस इज गुड टू गो, यू आर सेफ इन 60 प्लस इन दिस शिफ्ट. ऑल राइट, सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स. इफ यू आर समवेयर इन द बॉर्डर लाइन जोन में भी अगर आप हो, की प्रिपेयरिंग फॉर मेन्स, डोंट गिव अप. And otherwise anyway don't give up, because the clerical exam is coming up in December. उसके लिए तैयारी करो. If you have not scored well here, just don't give don't give up, don't lose hope, because आगे एग्जाम्स आते हैं. कई लोग बिगिनर्स हैं, उन्होंने पहली दूसरी बारी शायद ये अभी एकदम से दे दिया पेपर, तैयारी शुरू करते ही 1-1.5 महीने के अंदर अंदर. तो उनके लिए आई विल से डोंट लूज हार्ट, देयर इज अ ब्राइट पाथ अहेड. और दिसंबर में अभी टाइम है, यू कैन स्टिल प्रिपेयर एंड डू वेल इन दोज एग्जाम्स एज वेल. उसके अलावा पेपर्स बहुत सारे निकलते रहते हैं, मोर वैकेंसीज आर गोइंग टू बी एडेड. सो डोंट जस्ट वरी अबाउट एनीथिंग. जैसा भी हो गया है, डोंट स्ट्रेस अबाउट इट. ऑल राइट, बिकॉज मेंटल हेल्थ भी, उसका भी ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है, एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स, बिकॉज बीमार हो गए तो पेपर कोई भी देने का कोई फ़ायदा नहीं है. जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ बोथ, एंड कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग हार्ड. एफर्ट कभी भी वेस्ट नहीं जाता. अगर आपको लग रहा है कि ये एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, आई एम श्योर अगर आपने मेहनत की है तो कोई अगला अच्छा हो जाएगा. जस्ट डोंट लूज होप, कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट्स जिन्होंने दे दिया है. शिफ्ट 3 and 4 के लिए बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज द हार्डेस्ट टाइम इज येट टू कम एंड वी विल रिकवर फ्रॉम इट. ऑल राइट, थैंक यू so much boys and girls, and see you after shift 3. All right, thank you, bye bye.